नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी और मैं हूं निशांत। इंडिया में जनरली अब स्पोर्ट्स की बात होती है तो सिर्फ क्रिकेट की बात होती है, लेकिन एक और ऐसा स्पोर्ट जो है जो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है वो है पिकल बॉल। और हम एक ऐसे इवेंट में आए हैं, पिकल बे इवेंट काफ़ी पॉपुलर है अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, और दिल्ली जो उसका लेग है वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट मैचेस हमने देखे और उनके फाउंडर जो है हमें मिल चुके हैं, सीईओ मिस्टर सिद्धांत। सबसे पहले वेलकम टू स्पोर्ट्स यारी। थैंक यू। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि पिकल बॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जिसे लोग इतना जानते नहीं हैं, कंपेयर करते हैं टेनिस से, बैडमिंटन से, क्योंकि रैकेट स्पोर्ट है। तो सबसे पहले आप जिसे नहीं पता है उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे स्पोर्ट्स के बारे में? So pickleball, if I may say, it is currently amongst the fastest growing sports in the world. ये एक हाइब्रिड स्पोर्ट है व्हेन यू कंपेयर टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, सबका मिश्रण है ये. सो इट इज़ अ स्पोर्ट विच कैन बी played across all age groups. It can be a 8-year-old kid who's playing the sport. It can be somebody who is 75 years playing the sport. So it is very, very age agnostic. Along with this, both men, women, people of all genders, it's open for everyone, and it is very, very welcoming. I think while it is a sport, it is also a new way how people are connecting with each other. So, एक lifestyle sport भी है. While it is played at a competitive level also, like right now we are having a competitive tournament, it is also a lifestyle sport basis which people are getting to make new friends, people are getting to meet each other. So I think it's a much, much needed sport. And talking about Pickle Bay, I think Pickle Bay is a complete ecosystem. We are trying to build a complete ecosystem around the sport of pickleball. तो यहाँ पे हम सिर्फ tournaments नहीं करते हैं. So if somebody wants to build a court, we build courts for them. If somebody wants us to manage facilities, we can manage facilities for them. We run our own tournaments. We are a tech first company because of which we have a tech platform. जिससे लोग they can find courts. कहाँ पे हम the closest court to you. What is the cheapest price? And we are pickleball only. Using tech, we have created a tournament management software also. जिससे हमारा tournament भी आप देखेंगे, we are running ahead of schedule. Pickleball में एक बहुत common complaint है that events बहुत delay होती है. We don't know when our next games happen. Out here, we have a tendency of finishing ahead of schedule because of proper planning, usage of tech. So ये जो हमारा tournament management solution है, ये हम बाकी tournament organizers को भी देते हैं. So this is our fourth event, rather fourth tournament that is happening. We started with Mumbai, went to Bengaluru, went to Kolkata, and Delhi NCR edition is our fourth edition of the Pickle Bay India Tour. This is one of our IPs. Response has been phenomenal. We have about 250, 300 players who will be playing across 2 days. Starts at 8 in the morning, goes on till 10:30 at night. Multiple categories, but a player comes, plays their category in 2.5 hours and is free to go. ऐसा नहीं कि सुबह 8 बजे आके 11 बजे जा रहा हो. So अपना आए, जैसे we have already completed one category since morning. The second category is going on right now. So the response has been phenomenal. It's a very, very encouraging market, and fingers crossed, in days to come we can expect this sport to actually boom in ways we cannot even expect. जैसा आपने बताया कि 250-300 प्लेयर हैं, अराउंड 300 हैं, और आपने टूर्स किए हैं सिटी के अक्रॉस इंडिया। तो एक जो इंडिया में स्पोर्ट्स में प्रॉब्लम हमने देखा है कि मेल पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, तो पिकल बे पर्टिकुलरली आपको लगता है कि फीमेल्स को भी इनकरेज कर रहा है? So I'll give you a figure. जैसे पकड़ लीजिए, ग्लोबल पार्टिसिपेशन अगर मैं बात करूं, there's a study that approximately 45 to 48% of the players playing pickleball are actually women globally. But if I talk about India, we still have some way to go. Women participation is increasing with every passing day, but abhi bhi we have a journey to climb. I would say currently we are at 25-30 odd percent in India. But very soon we'll be close to global standards, because again, as I'm saying, it's a very welcoming sport, right? Everyone can play it. अगला सवाल मेरा यही है कि पिकल बॉल से एक्सपेक्टेशन बढ़ा है, क्योंकि जैसे आपने कहा ग्लोबली फास्टेस्ट ग्रोइंग है, इंडिया में भी फास्टेस्ट ग्रोइंग है। तो क्या ये स्पोर्ट जल्द ही हमें ओलंपिक में दिखेगा, और दिखेगा तो इंडिया का क्या आपको लगता है कि हम उस लेवल पे कॉम्पीट कर पाएंगे, उतना ग्रोथ कर पाएंगे? Olympics may see the entire pickleball fraternity, if I may say, it is our joint endeavor to ensure it comes into the Olympics. 2036 is what we are all talking about. So the endeavors, the global forces also, including Indian forces, we are all trying. I think India is a growing market when it comes to pickleball. Is a growing market, and with the current size of our population, agar ye sport gets the kind of popularity it can, then I don't think there would be any country to touch India. But for that, pickleball का penetration country में बढ़ना और ज़रूरी है.
right? So as of now, yes, India will give a good fight, but in order for India to actually go out and actually win medals at a level like in Olympics, I would personally think we need more participation coming in. I would say more grassroots level participation, right? For which I think Pickleball also as a platform, we will try to increase awareness, and I think everybody else is also as we speak. आपने यहाँ पे गोल्ड जीता, जो भी आपकी फीलिंग्स है, पर जो बैकग्राउंड लोग देखेंगे वो जानना चाहेंगे कि आपने इस स्पोर्ट्स को अडेप्ट किया है, क्योंकि जो ये स्पोर्ट्स है जनरली लोग इसको बैडमिंटन और टेनिस से कहते हैं कि इसका कुछ मिक्सचर है, तो आपका कैसा जर्नी रहा है? पहले थैंक यू सो मच। मैं इससे पहले टेनिस खेलती थी एंड बहुत मतलब अभी भी खेल ही रही हूँ, तो उसकी वजह से मुझे ये स्पोर्ट स्टार्ट करने में काफ़ी आसानी हुई और इट्स बिन वेरी इजी बिकॉज ऑफ दैट एंड दैट हैज़ बिन टिल नाउ। ओके, जैसा आपने बताया टेनिस, तो आपका कोई रोल मॉडल है स्पोर्ट्स में, नॉट जस्ट फ्रॉम टेनिस, एनीवेयर, एनी स्पोर्ट, एनी फीमेल मेल एथलीट, जैसे रॉजर फेडरर, सेरेना विलियम्स, अगर आप टेनिस की बात करें? इन टेनिस इट्स ऑफ कोर्स रॉजर फेडरर। रॉजर फेडरर। बात करते हैं इंडियन पिकल बॉल की। जैसा आपने देखा होगा कि इंडिया में सिर्फ क्रिकेट का ज़्यादा क्रेज़ है, पर जिस तरीके से इस स्पोर्ट्स ने राइज दिखाया है, लीग्स हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा है अक्रॉस इंडिया, तो आपको क्या लगता है, क्या इस स्पोर्ट्स के पास वो ताकत है जो क्रिकेट के बाद सबसे बड़ा स्पोर्ट्स बन सकता है और ओलंपिक में भी जा सकता है? अगर आप देख रहे होगे तो आजकल काफ़ी ज़्यादा सारी एसोसिएशंस कोशिश कर रही है कि ये स्पोर्ट पिकल बॉल ओलंपिक्स में आए, तो मेरे हिसाब से ये आ सकता है क्योंकि अब सिर्फ इंडिया ने स्टार्ट यूएस से हुआ है, उसके बाद काफ़ी सारी एशियन कंट्रीज़ भी यही सेम स्पोर्ट खेल रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चांस है कि ये स्पोर्ट आएगा ओलंपिक्स में। और काफ़ी ये स्पोर्ट में आप कोई भी एज वाले खेल सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर एज का नहीं है, जो बहुत बड़ा एडवांटेज है। और लोग एवरीवन उस एज में सबको मज़ा करना होता है, सो दैट इज़ ऑल्सो वन एक जगह इनको एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब लोग सारी एज के मज़े कर सकते हैं, सारी एज के खेल सकते हैं। सो येस, ये बड़ा बन सकता है स्पोर्ट, बट ऑफ कोर्स हमारा टेनिस और क्रिकेट वो काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है इस टाइम, बट दिस विल ग्रो आगे जाके। ओके, हर एक एथलीट की लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे आपको टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं, जैसे आपने टेनिस से यहाँ शिफ्ट किया, व्हाट वाज योर डिसीजन जहाँ पे आपको लगा कि ये गेम चेंजिंग हो सकता है? तो मैंने ये स्पोर्ट पहली बार अक्टूबर 24 में खेला था। मैं टेनिस भी खेल रही थी, तो तब तो मैंने एक दिल्ली में इवेंट खेला था, जिसकी वजह से मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा था क्योंकि उसमें भी कोई एक लीग थी। उसके बाद से मैं दोनों टेनिस और पिकल बॉल खेल रही थी। पिकल बॉल तब कम था, अभी कुछ 1-1.5 महीने पहले से ही मैंने पिकल बॉल थोड़ा ज़्यादा करा है। तो येस, एक हमेशा कोई एक टफ चॉइस लेनी पड़ती है, तो अभी एट द मोमेंट मैं पिकल बॉल ही खेल रही हूँ, टेनिस कम हो गया, बट येस वो डिसीजन ज़रूरी था। तो मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहेंगे स्टेट को इंडिया लेवल पे, एशियन गेम्स में भी बातचीत चल रही है, ओलंपिक्स में भी शायद 2032 या 36 में, तो किस स्पोर्ट्स की तरफ आपका फोकस रहेगा कि यहाँ से रिप्रेजेंट करना है इंडिया को? अभी मेरा फोकस पिकल बॉल में ही है, तो पिकल बॉल ही। जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में आपने खेला, आउटस्टैंडिंग, हमने सेमीफाइनल देखा, फाइनल देखा, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो लोग रिलेट करते हैं, बैडमिंटन टेनिस का कुछ आप कह सकते हैं मिक्सचर, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे किसी एक नॉन स्पोर्ट्स जिसको नहीं पता है स्पोर्ट्स के बारे में? ये उन लोगों के लिए उनको ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है कि उनको बोला जा सकता है कि आप ट्राई करके देखिए। मतलब हम यूजुअली बोल देते हैं कि टेबल टेनिस का बड़ा वर्जन और लॉन टेनिस का छोटा। आपके हिसाब से इस स्पोर्ट्स के पास वो पोटेंशियल है कि ये कभी आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद कभी ओलंपिक में हमें दिख सकता है? एक्चुअली जहाँ तक न्यूज़ आ रही है इसकी ऑलरेडी बात चल रही है। बिल्कुल। आने वाले 3 से 4 साल में हो सकता है ये ओलंपिक्स में आपको देखने को मिले। अच्छा, 32 में जो ओलंपिक्स है वहाँ पे मैं दिख सकता है। हर एक एथलीट के लाइफ में एक ऐसा पॉइंट होता है जिसे हम चूज बोल्ड मोमेंट कह सकते हैं, कि एक बोल्ड टाइम था जहाँ पे आपके ऊपर टफ टाइम है, आपको एक डिसीजन लेना था कि स्पोर्ट्स में आगे चलना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं, तो आपके करियर में वो बोल्ड मोमेंट कौन सा था? वो 2020 में था जब मैं लॉन टेनिस खेलता था एंड मेरे को इंजरी हुई थी टेनिस एल्बो, जिसकी वजह से मेरे को टेनिस छोड़ना पड़ा। एंड देन वो मतलब मैं 1 साल का फेज़ हुआ ऐसा था, 2 साल जब मैं कुछ नहीं खेला। उसके बाद 2 साल के बाद मैंने धीरे धीरे खेलना शुरू किया टेनिस ही। बट इस अक्टूबर में मेरे को पिकल बॉल के बारे में पता चला एंड देन मैं ट्रांजिशन कर गया पिकल बॉल के अंदर। ओके, अगर कोई यंग बच्चा देख रहा है, कोई यंग एथलीट देख रहा है जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले रहा है और काफ़ी ज़्यादा इंडिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट है, अगर आप क्रिकेट के बाद बात करें, तो आप उसे क्या एडवाइस देना चाहेंगे? अगर वो लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, कल को कोई बड़ा इवेंट होगा इंडिया में, एशियन गेम्स में भी जाएगा स्पोर्ट्स, तो आपको क्या लगता है कि क्या एडवाइस आप उन्हें देख सकते हैं? ये बहुत अच्छा टाइम है पिकल बॉल स्टार्ट करने का। अगर कोई यंग देख रहा है तो उसको पिकल बॉल ज़रूर अभी से स्टार्ट करना चाहिए। जब तक एशिया या जब भी ओलंपिक्स में गेम आएगा तब तक काफ़ी अच्छा चांस है लोगों के पास अपने यहाँ नेम जो है इस्टेब्लिश करने के लिए।
आपके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपने पिकल बे का इवेंट जीता है, गोल्ड जीता है, तो आपने क्या सोचा है कि व्हाट आर योर नेक्स्ट टारगेट? मैं कल जा रहा हूँ मुंबई के लिए। मुंबई में मॉनसून ओपन हो रहा है विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, इंडिया का सेकंड बिगेस्ट या सबसे बिगेस्ट आप इवेंट मान सकते हैं उसको, वो खेलने जा रहे हैं। ओके, कांग्रेचुलेशंस युगल, आपका गोल्ड भी जीता। आप उम्मीद करते हैं आप आगे भी रिप्रेजेंट करें और अच्छा खेलें, स्टेट जाए, इंडिया जाए। ऑल द बेस्ट।